اسلام دیکھیں, اسلام تو واضح ہمیں جو احکام ملتے ہیں, کہتے شیخ سعدی کا جملہ یاد آ جائے, وہ کہتے ہیں مجھے کبھی جو ہے نا اپنی خاموشی پہ پچھتانا نہیں پڑا, ہمیشہ پچھتانا پڑا ہے تو بولنے پہ پچھتانا پڑا ہے. یعنی زبان کی جو تخریب کاری ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں, جیسے وہ تیر نکل جاتا ہے کمان سے پکڑا نہیں جا سکتا. آپ نے جو جملے کہے ہوتے ہیں وہ نفرت اس میں بھری ہوتی ہے, اس میں شدت ہوتی ہے, اس میں بد کلامی آپ جو کر جاتے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں آپ کے. اسلام تو اخلاق سکھاتا ہے, اسلام تو برداشت سکھاتا ہے, اسلام تو جو ہے وہ تربیت دیتا ہے کہ سب 14 زخمی پیاسے ہیں, پیالہ آتا ہے, وہ ایک دوسرے کو دے کے شہید ہو جاتے ہیں لیکن پانی نہیں پیتے. یہ تربیت رسول ہے. یعنی اپنا حق بھی آپ دوسرے کو دینے کی بات کرتے ہو. اسلام تو یہ بات کرتا ہے, اسلام تو کہتا ہے کہ کسی نے کوڑا پھینکا معاف کرو, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ کا اچھا رویہ دوسرے کے رویے کو بدل سکتا ہے. اچھا ہوتا کیا, ہم جو اچھا رویہ کرتے ہیں نا وہ بھی کوئی ایکویشن سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میرا رویہ اچھا ہوں تیرا اچھا. تھوڑا سا ذرا تحمل و برداشت سے چلیں. یاد رکھیے اگر آپ کا خلوص ہے, آپ کی پوری ایمانداری ہے, دوسرے میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. اسلام تو بات کرتا ہے, اگر اصول کی بات کروں جو ہمارے علم میں, جو ساس ہے وہ بہو کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل ٹھیک. یہ ذمہ داری اپنے بیٹے کی ہے. اگر اس کی بہو خدمت کرتی کی ذمہ داری بن سکتی ہے, شرعی ذمہ داری نہیں ہے. کہ اگر کوئی ساس لاتی ہے کام کے لیے, کاموں کے لیے بہو کو لاتی ہے تو بہو کی مہربانی ہے کہ وہ کام اخلاقی طور پہ اس کے بھی کر دیتی ہے. اصولی طور پہ بیٹے پہ لازم ہو جاتا ہے کہ بیٹے نے خدمت کرنی ہے. اب کیونکہ وہ بیٹی تو اس کی نہیں ہے, بہو ہے, وہ جب یہ کرتی ہے تو کریڈٹ گوز, اس کو تو کریڈٹ ملنا چاہیے. ہمارے ہاں یہاں اس کو لازمی سمجھ لیا گیا, اس کو پارٹ اینڈ پارسل سمجھ لیا گیا ہے کہ جو بہو ہے وہ ساس کی اگر خدمت نہیں کرتی تو وہ مجرم ہے. قطعی مجرم نہیں ہے. مجرم وہ تب ہے جب وہ اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتی. ہمیں جو جواب دہی ہے وہ اپنے پیرنٹس کی ہے. یہ اخلاقی ذمہ داری کے طور پہ آپ لے لیتے ہیں کیونکہ میرے خامند کی والدہ ہے, اور اگر بیمار ہے تو بیمار کی تو عیادت کا ویسے بھی ثواب ہے. اگر وہ ڈسٹرب ہے تو آپ نے اس کو ٹائم دیا, آپ نے اس کے کاموں میں ہاتھ بٹھا لیا تو اچھا کیا آپ نے, لیکن ہیلدی طریقے سے, پازیٹیو وے میں, لڑ کے نہیں, کانفلکٹ کے ساتھ نہیں. مطلب اخلاقی قدریں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن یہاں پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اگر اسلام کو فالو کرتے ہیں تو اسلام میں یہ چیز کہیں پر بھی نہیں کہی گئی ہے کہ ساس کی خدمت کریں. اور مطلب اگر وہ خود سے کرتی ہے تو لازمی بات ہے اس کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے, لیکن اسلام میں کہیں پر بھی نہیں کہا گیا. اس شوہر کی, اس بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے. اور اسلام میں تو یہ تک علیحدہ بھی ہونے کا کہتی ہے, شادی ہونے کے بعد اگر بہو علیحدہ ہونے کا بھی کہتی ہے تو فوراً علیحدہ کر دو تاکہ تمہارے گھر کی عزت بچی رہے. اور اس پہ تو جامعہ اشرفیہ جو انہوں نے فتویٰ بھی جاری کیا. بالکل فتویٰ جاری کیا. اس کے ساتھ یہ بھی ایڈیشن کر دوں, یہ بھی کلچر ہمیں ملا ہے مکس, کٹھے رہنے کا. اچھا کٹھے رہنے میں حرج کوئی نہیں, اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں, لیکن یہ کوئی اسلامک کلچر نہیں ہے. یہ واضح میں کر دوں کہ عربز میں, اسلام میں کلچر نہیں ہے کمبائن فیملیوں کا, 4-4 6-6 فیملی کٹھی رہ رہی ہیں, اور 4-4 6-6 فیملی کٹھی رہ رہی ہیں, بعد میں بچے بالغ ہو رہے ہیں, ان کی پرابلمز آ رہے ہیں, ان کی آپس میں افیئرز بن رہے ہیں, پرائیویسی نہیں ہے, سسٹم ٹھیک نہیں ہے, واش روم جو ان سے وہ کٹھے 6-6 فیملی یوز کر رہی ہیں. جب اچھا اب یہ پیچھے جاؤ تو کہیں گے جی غربت ہے. سر نا پلاننگ کرے نا, ٹائم پہ چیزوں کو طے کرے نا. ایک بات یاد رکھنا, جن گھروں کے بڑے ویژن سمجھداری کے ساتھ وقت پہ تقسیم نہیں کرتے, وقت پہ ہینڈ اوور چیزیں نہیں کرتے, وقت پہ پاؤں پہ بچوں کو کھڑا نہیں کرتے, وہاں یہ مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پھر 6-6 جٹھانیاں نندیں کٹھی رہ رہی ہیں اور پورے گھر میں کھچڑی پکی ہوئی ہے, ایک دیگ پکانی پڑتی ہے, دیگ جو ان سا دیگ پکانے والا خود دیگ پہ بیٹھا ہوتا ہے, حالت یہ ہوئی ہوتی ہے. جب بھی سسٹم ایک پراپر بنا ہوگا, نظام بنا ہوگا, انڈیپینڈنسی ہوگی کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری, اپنی چیزوں کو دیکھے گا, تو یہ پرابلمز پھر نہیں آتے. تو پھر معاشرے کی تربیت کیسے کی جائے, کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. اگر یہ ایک المیہ بن چکا ہے کہ جو کچھ بھی ہو, بہو کی ذمہ داری ہے ساس کو بھی دیکھے, بہو کی ذمہ داری ہے گھر کو بھی دیکھے, بہو کی ذمہ داری ہے بچوں کو تو دیکھنا, اور شوہر کا ہے وہ تو اس کا فرض ہے, اس کے حقوق میں ہے, خاوند کے حقوق میں ہے. لیکن اگر گھر کی بھی کوئی ذمہ داری ہے وہ بہو لے, اور اگر کچھ ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ کچھ مسئلہ ہو بھی جاتا ہے, تو سارا اگر کچھ مسئلہ خراب ہوا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی بہو ہے, اس کی وجہ سے ہوا ہے, غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہوا ہے. مطلب معاشرے کو کیسے بلٹ اپ کریں کہ ایک عورت کے اوپر کتنے وہ بوجھ برداشت کرے. دیکھیے اس معاشرے میں میرا اعتراض ان لوگوں سے ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو تھوڑی سی معاش مناسب رکھتے ہیں, وہ 2000-2500 کی کو ملازمہ نہیں افورڈ کرتے, گھنٹے کے لیے آئے اور گھر کے
अपने घर की बहू को काम वाली बनाओगे तो आपकी नस्ल को काम वाली माँ मिली, एक ऐसी अप्रोच की काम एक औरत मिली जिसकी सारे के सारा इन्हीं चीजों में जो जाया करती जा रही है अपनी एनर्जी को। और हर्ज कोई नहीं है, देखो काम से कोई शर्म वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो खुदा के बंदो तो 2000-2500 बचा के आपने करना क्या है? बिल्कुल ठीक। आप वो बचा लेते हो, नस्ल तबाह कर देते हो। वही टाइम वो अपने बच्चों को दे, वही टाइम अपनी वो हेल्थ को दे, वही टाइम वो अपने आप को दे, वही टाइम वो जो अच्छा, हेल्थ से याद है कि हेल्थ पे बहुत रोक टोक होती है, खाने पीने से रोक दिया जाता है बहुओं को। वही जब उस सास की, उस माँ की बेटियां आती हैं तो फिर बहू को कहा जाता है कि खाने पर वो अपने ससुराल से आई हैं, थकी आई हैं, घर आई हैं, तो वो वहां पे रेस्ट करने के लिए आई। मतलब ये क्या लॉजिक है? हमारा मुआशरा क्यों ऐसा है? हमारे इस्लाम में जब इन चीजों की गुंजाइश नहीं है, हमारा मुआशरा इस्लाम को फॉलो करता है, फिर ये चीजें क्यों? इंडियन कल्चर, बीमार कल्चर, इस बीमार कल्चर ने आपको जहां कितनी बीमारियां दी हैं, ये भी बीमारी आपको दी है कि वो बेचारी नुकरानी बन के रह जाती है। अच्छा, एक मैं अगेन कह रहा हूं कि माँ से सबसे ज्यादा जुड़े हुए उसके बच्चे हैं। अगर माँ डिस्टर्ब है ना तो बच्चे डिस्टर्ब जरूर होंगे। बिल्कुल। अगर घर का माहौल डिस्टर्ब है तो बच्चे डिस्टर्ब जरूर होंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर वालदैन में बेहयाई है ना, बच्चों में बेहयाई बड़े आराम से आ जाती है। अगर वालदैन में पासदारी एक हया है, बच्चों में वो हया और इखलाक जो उनसे वो आ जाती है। अगर वालदैन को वो देखते हैं कि वो अपने बड़ों का अदब करते हैं, तो बच्चे भी फिर अपने बड़े यानी वालदैन का अदब करते हैं। ये घरों के कल्चर बनाने की जरूरत है। हमें बहुत सी जो जरूरत है ना, देखो एनजीओ सेक्टर में कितना काम हो रहा है और सोशल वेलफेयर कितना काम कर रही है, हमारे इदारे कितना काम कर रहे हैं। जो मिसिंग एलिमेंट है ना, वो हम अच्छी बहू तैयार नहीं कर रहे, हम अच्छी बेटी तैयार नहीं कर पा रहे। कोई भी बच्चा तैयार करता है तो वो अपने लिए तैयार करता है, मेरा बेटा बड़ा अच्छा होगा, कोई नहीं सोचता ये दामाद भी बनना है इसने। अच्छी बेटी तैयार की जाती है, कोई नहीं सोचता इसने अच्छी बहू भी बनना है। अच्छा, उसको कामों से डिस्कशन है हमारी, कामों से बचाया जाता है कि तू हाथ नहीं लाना, तू कोई काम नहीं करना। कल कलां को देखो काम जिंदगी में गले पड़ते ही हैं, जिम्मेदारियां आती हैं, औरत ने चूल्हा भी संभालना है, घर संभालना है, सारे को रईस नहीं हो सकते। कली थी है ना, नहीं काम करनी, तो वो कली थी ना भी हो, कई घरों में कल्चर ही नहीं होता ना कि हाथ नहीं लगाने देना उनको। जब आप बच्चों को चीजें सिखाएंगे नहीं, उनको सर्व करना नहीं सिखाएंगे। एक देखो पुराना वो बताया जाता था कि दिल्ली में मैनर्स और एटिकेट सिखाने के लिए कुछ फैमिलीज फेमस थी। अच्छा। जो कि बजाहिर उनके प्रोफेशन कोई काबिले तज़किरा नहीं थे टीवी में बताए जाए, लेकिन अपने बच्चे वहां छोड़े जाते थे कि इनको तहजीब सिखाई जाए, चाय पेश करनी कैसे पेश करनी, किसी को खाने का पूछना है तो कैसे पूछना है। वजह क्या? ये छोटे छोटे मैनर्स जो उनसे हैं, ये इंसान के कद काट को ऊंचा कर देते हैं। एक बात याद रखना, जिस घर में आने वाला सरबराह सुबह से काम पे गया हुआ, उसका घर आने को जब वक्त हो और उसको टेंशन शुरू हो जाए घर जाना, फिर कुछ स्यापा पे यार वो घर फिर घर नहीं है। वासिफ अली वासिफ फरमाते थे, अगर अपना घर सुकून का बायस नहीं ना बन रहा, तौबा का मकाम है। मींस कुछ रिन्यूअल चाहिए आपको, कुछ ना कुछ गलती जरूर है कि अपना घर, अपना ही घर तो होता ही सुकून है, सुकून का बायस नहीं बन रहा तो तौबा कीजिए। कुछ ना कुछ गलती सास से, बहू से या दामाद से। चाहूंगी कि आप रहनुमाई जो है, जो शौहर का मर्द हजरात की कर दें कि वो शौहर भी है और जाहिरा बेटा भी है। तो अब फंस यहाँ पर जाते हैं कि अगर माँ की मान ली तो फिर कहेंगे कि जी बहू कहेगी कि माँ ने संभाल लिया बेटे को, और अगर बहू की मान ली तो माँ कहेगी कि बहू ने संभाल लिया। तो मतलब अकेला मर्द क्या करे, दोनों को बैलेंस किस तरह करे? और जिस तरह से मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि चंद पुत्र दा होएगा की, तो फिर चंद पुत्र दा की हाल है, उसकी थोड़ी रहनुमाई कर दे, वो बेचारा क्या करे। अच्छा, सिरे से ये बुनियाद ही गलत है। मैं इसको ये कहूं कि चीप सोच है कि आप बच्चे को एक जंग दे रहे हैं, फैसले में डाल दिया आपने उसे, या माँ या बहू, खुदा के बंदो किस जंग में आपने डाल दिया? ये मुआवजा कौन सा आपने दे दिया? ये तो बीमार जहन की पैदावार है कि आप उसको एक ऐसे इम्तिहान में डाल रहे हो, एक तरफ बच्चों की माँ खड़ी है और एक तरफ अपनी माँ खड़ी है, आप किस मुआवजे में डाल रहे हो? ये मुआवजा भी वीक घरों में आता है, कमजोर घरों में आता है। देखो गोरे ने ना इस पे किताबें लिख मारी है, उन्होंने बताया है कि जो कामयाब फैमिली, उनकी 7 आदत कौन सी है। इस पे सैन कॉवी की बड़ी शानदार किताब है कि जो हाईली इफेक्टिव फैमिलीज हैं, उनकी 7 क्वालिटीज कौन सी हैं। वो कह रहे हैं जी नंबर 1, पहली क्वालिटी बड़ी मजेदार है, वो अपने एरिया ऑफ कंसर्न में रहते हैं। बिल्कुल ठीक, समझे कि नहीं समझे? मसलन मैं यहां बैठ के ना दिल कर रहा है, मैं अपनी, उसने कभी, मैं प्रैक्टिकली लकीली समझ गई
किसी के काम में किसी की बात में दखल नहीं देना। अच्छा, उसने देखा ना कि दो ऐसी बात कर रहे हैं जो कंसर्न नहीं, वो चुप करके वहां से उसने हट जाना है। ये मैंने लर्न किया कि जो लोग कंसर्न एरिया में रहते हैं वो सुकून में रहते हैं। जो लोग कंसर्न एरिया से बाहर निकल जाते हैं, ऐदा भी सुनना है, ऐनू भी जवाब देना है, ऐदी भी कमेटी पाई है गल्लां दी, होगा क्या, एरिया ऑफ कंसर्न खत्म होगा तो आपकी अपनी जिंदगी की जो क्वालिटी है, जो सुकून है, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, वो कहते हैं जी जो मौसर लोग होते हैं, मौसर फैमिली होती हैं, जो अफेक्टिव फैमिली है, कामयाब फैमिली है, वो एंड को सामने रख के उसके लोग कदम उठाते हैं। बिल्कुल ठीक। माँ सोचे शुरू कर रही हूं, इसका अंजाम नस्लों को क्या मिलेगा, एंड को सामने रखना है। बहू सोचे कि मैं अगर ये जंग अपने खामद को दे दूं, या मैं या तेरी माँ, इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है कि वो गुस्ताख बेटा बन जाएगा। ये जंग तो देनी नहीं चाहिए थी। यानी आप किसी का इम्तिहान भी ऐसा इम्तिहान ले रहे हो, वो हारे तो तब भी जीतता है, जीते तो तब भी हारता है, यानी हार ही हार है दोनों केस में। जीत पे भी हार है, हार तो हार है ही। जब आप ऐसे इम्तिहान में डालते हो तो मैं समझता हूं ये ज्यादती माँ की तरफ से भी है, बहू की तरफ से भी है। लेकिन पिस वो बेचारा मर्द ही रहा है जो दोनों को बैलेंस कर रहा है। और आपने माशाल्लाह से आज भाभी की तारीफ भी कर दी, खाना आपको आज अच्छा मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर बैक टू द मर्द फिर क्या करे कि अगर अपनी माँ की तरफ जाता है कि भाई इस्लाम में माँ को जो मुकाम और मर्तबा मर्द इस्लाम ने दिया है एक माँ को, वो कोई भी उसका मैच नहीं है, मैचलेस है, बीवी नहीं है, औलाद नहीं है, कुछ नहीं है। वो फिर कहेगा कि मैं इस्लाम के मुताबिक जो है फिर अपनी माँ का दिल दुखा रहा हूँ। और अगर इस्लाम ही के मुताबिक अगर अपनी बीवी के पूरे हकूक पूरे कर रहा है तो फिर वो कहेगा कि मतलब कि दोनों साइड में। मैं कहूंगा शादी बच्चों की करने से पहले घर के बड़ों को बैठ के ना घर के कल्चर को ठीक करने की जरूरत। खुदा के बंदो, पूरा घर किसी नई शिफ्ट पे, नई जहत पे जाने लगे। आप लोग किसी की बेटी लाने लगे हो, आपकी बेटी कहीं जाने लगी है, क्यों ना जब आप मियाँ बीवी थे, बच्चे छोटे थे, तब से आपने फैसले किए कि ये हम एक पूरे घराने की, पूरी नस्ल की तामीर कर रहे हैं, तब से कल्चर्स आपने स्टैब्लिश किए। दूसरी बात ये है कि अगर नहीं तो कम से कम उनकी शादियों से पहले घर की कुछ तरतीबें ठीक कर दें, कुछ सिस्टम ठीक कर दें, वो घर की प्राइवेसी को प्रॉपर मेंटेन करें, बच्चों की जिम्मेदारियां बच्चों पे डालें, उनको कहें कि अब आपकी अपनी जिंदगी शुरू हो रही है, हम सपोर्टिव हैं, हम शादियों में सपोर्टिव हैं, हम आपके बच्चे खिलाने में भी सपोर्टिव हैं, हमें चलें ठीक है कुछ चाहिए भी आपसे, आज हम बूढ़े हैं, मोहताज हो गए थोड़े से, लेकिन खुदारा अगर निजाम नहीं बना होगा, अच्छा याद रखो, मुल्कों के निजाम नहीं ना होते तो इंसाफ नहीं होता, बिल्कुल ऐसे, शहरों के निजाम नहीं होते ना, घरों के भी अगर निजाम नहीं होंगे तो उन घरों में इंसाफ नहीं होगा, कोई मजलूम बन जाएगा, कोई जालिम बन जाएगा। अच्छा, हमने सारे मसाइल डिस्कस कर लिए, औरत का करैक्टर बहू के रूप में भी, सास के रूप में भी, मर्द क्या करे वो भी डिस्कस कर लिए। अब इसके अगर हल की तरफ आए तो हल क्या कहता है? क्योंकि बार बार मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है कि हमारा जो मुआशरा है ना वो इस्लाम को फॉलो करता है। इस्लाम, हम एक इस्लामिक मुआशरे में रहते हैं, फिर ये कैसा इस्लामिक मुआशरा जिसमें हम हिंदुस्तान के रवायात और हिंदुओं के रवायात जी रहे हैं? हमें छांटने की जरूरत है, हमें सेपरेशन की जरूरत है। मजे की बात बताऊं, वो तमाम लोग जिन्होंने खुद कुरान का मुतालिया किया है, मेहनत से हदीस का मुतालिया किया, यानी इस्लाम को समझा है, वो इन रवायात जोनसी हैं और ज़ईफ कल्चर जोन्स है उससे दूर हो गए। उन्होंने कहा जी हमें नहीं ये चाहिए, हमें घर का अमन चाहिए, हमें घर का सुकून चाहिए। हम उन चीजों को क्यों माने जो सिर्फ कल्चरली हमें ऐड हुई हैं, जिनके नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। बस मैं अप्रिशिएट करता हूं ऐसे लोगों को जो जहेज के खिलाफ है, बिल्कुल ठीक, हिम्मत से वो कहते हैं जी हम अपना घर खुद एस्टेब्लिश करके को बहू ले आएंगे, बेटी ले आएंगे, हमें क्या जरूरत है दूसरे के माल की तरफ देखने की। बल्कि वो ताना मारा जाता है, खुदा के बंदो, किसी का खरीदा हुआ बिस्तर उस पे तुमने सोना है। बिल्कुल इतनी तो गैरत बंदा पैदा करे कि जहेज तो कम से कम बंदा ना ले। आपको पता है सास बहू के झगड़ों की पहली बुनियाद जहेज है। ठीक, इससे ही से स्टेटस को देखा जाता है, माल को देखा जाता है, होती मालो असबाब और स्टेटस की शादियां हो रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उसके बाद पूरा जहेज जो है वो पूरे खानदान को भी दिखाना होता है कि कुड़ी ऐ लेके आई है, कुड़ी वो लेके आई है, ते ऐ नहीं लेके आई। में सबसे पहली चीज ये आती है, पहले तो पूरी सोसाइटी को और घरों को ये अपनी प्रायोरिटी में बनाना है कि हमने इस मसले को हल करना है। अभी तक इसकी हल की कोई काविश, कोई कोशिश मौजूद नहीं है। कोई इनफरादी सतह पे कुछ लोग, बाशऊर लोग जो उनसे हैं या बाशऊर फैमिली है, वो रियलाइज करवा देती हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक दूसरे को रियलाइज करवा तरीके से। हमारा प्रॉब्लम ये, हम गलती को इतने बुरे तरीके से कहते हैं कि वो गलती दुरुस्त करने के बजाय अगले की जिद या चिड़ बन जाती है।
जो लैंग्वेज है ना, बोलने का अंदाज, ये इतना शानदार है कि आप बड़ी से बड़ी बात भी तरीके से कहने तो अच्छी लगती है, बिल्कुल ठीक। हमें ये कहना नहीं आता। अच्छा, एक बड़ी शानदार गोरे की किताब थी, हाउ टू से नो, ना भी कैसे कहनी है। हमें तो ना भी कहनी नहीं आती, हम मुंह पे मारते ना। उसका नतीजा क्या होता है, हमें जब बातचीत करनी नहीं आती, हमें मामला फहमी का पता नहीं होता, हमें किसी चीज के तौर अतवार का पता नहीं होता, तो नतीजा ये होता है वो छोटे छोटे मसले। ये भी बताऊं, बड़े केसेस में मैं जब खुद गया हूं, इन्वॉल्व हुआ हूं, सोल्यूशन के झगड़ा निकलता तो कुछ भी नहीं है। इतने छोटे मसले, कोई चाय की प्याली से शुरू हुए झगड़े, कोई पानी के ग्लास से, कोई ये बोटी मैंने खानी थी, ये वाली बोटी मैंने नहीं खानी थी, इतना छोटा सा मसला, कोई 10 रुपए 20 रुपए का मसला। जब आप इतने छोटे छोटे मसले, यानी नॉन एसेंशियल्स को आप एसेंशियल समझ के लड़ रहे हो, तो फिर क्या होगा। देखो, लोग बड़ा अलमी है, लोग छोटी जंग को ना पानीपत बना के छोड़ते हैं। उन्हें मजा तब आता है जब कोई बड़ी जंग हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। अच्छा, एक ये भी बड़ी खौफनाक, याद रखो, मियां बीवी के झगड़ों के बाद सास बहू के झगड़ों में शैतान बड़ा मावन है, वो बड़ा खुश होता है, वो ऐसे ऐसे आइडियाज देता है, वो ऐसे ऐसे पंगे सत्यानाश हो जाता है घरों का। घर टूटने का शैतान को बड़ी खुशी होती है। अब वो होता क्या है कि मिसाल लो, सास बहू का झगड़ा है, उसमें सास, कई दफा कई ऐसी सासें हैं जिनकी सक्सेस ये है कि इसको मार पड़वानी है बेटे से। अच्छा, वो ऐसी ब्रेन वॉशिंग करते हैं बच्चे की, लड़के की, और वो भी बेचारा एक लोकल लैंग्वेज में लाइलग कहा जाता है, वो लाइलग होता है, वो भी सुन के बगैर तहकीक के, बगैर किसी बात के, फिर जो यकीनी बात है हाथ उठा लेता है, और वो क्राइम की शक्ल बन जाती है। ना सिर्फ हाथ उठाता है, एज ए न्यूज एंकर मैंने जब खबर पढ़ती हूँ तो ऐसा आता है, नाक काट दिया जाता है, सर के बाल मूंड दिए जाते हैं, जला दिया जाता है। शौहर ने अपनी माँ के नहीं है, बदचलनी पर, बदजुबानी पर, तहकीकात किए बगैर, बस जैसे माँ ने कहा वैसे ही बेटे ने कर दिया। तो मतलब ये एक ये देखो, ये एक और चीज है, बच्चे, लड़के कहीं साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, जहनी तौर पे बीमार होते हैं, उनका इलाज करवाया नहीं होता, शादियां कर दी जाती हैं। जब शादी, दो बातें याद रखना, दो लोग कभी भी जोन सा ना, उनकी जिंदगी अज़दवाजी बड़ी मुश्किल है उनके साथ गुजारनी। एक वो बंदा जो गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार बंदा जो उनसे ना फैमिली को फकीर बना देता है, बिल्कुल। नंबर टू वो बंदा बड़ा मुश्किल है जो नफ्सियाती तौर पे पेशेंट है, बायपोलर है, उसके दो रूप हैं, मूड स्विंग्स उसके साथ आती हैं। अच्छा, अगर वो इलाज नहीं, तो अजाब शुरू हो गया किसका, बीवी का भी, बच्चों का भी। वजह ये है, उसको कोई डिफाइन मूड ही नहीं है, उसकी कोई पर्सनालिटी डिफाइन नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी इस कल्चर में माँ बाप ने, बुजुर्गों ने, उन्होंने हर चीज का शादी ढूंढा हुआ। एग्जैक्टली, मैं भी ये बात करने लगी थी, अगर बेटा काम नहीं करता, जैसे कि आपने कहा कि गैर जिम्मेदार मर्द के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होती है, लड़का काम नहीं करता, लड़का, आजकल तो कल्चर आम है कि 2-2 3-3 फोन पे लगे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा उन लड़कियों से हटाना है, शादी करा दो जी। हर मसले का हल शादी है, हर मसले का हल शादी है। बाद में होता है, जिस औरत को, जिस लड़की को लेकर आ रहे हो, उसकी जिंदगी तो तबाह हुई और उसके बाद घर के झगड़े खत्म नहीं होते। अच्छा देखो, ये भी है कि जो बंदा अब पहले जिम्मेदार नहीं है, हाल ये बताया जा रहा है कि शायद शादी से जिम्मेदार हो जाए, 10% हो भी जाएंगे, 90% जिम्मेदार नहीं होते। गैर जिम्मेदारी की, काम चोरी की उन्हें आदत पड़ी होती है, और बाद में भी क्या होता है, उस बेचारी बीवी को काम करना पड़ता है, उसको जॉब करनी पड़ती है। चलो कोई बगैर जरूरत के मसरूफ रहने के लिए करे, अच्छी बात है, या कोई शदीद जरूरत जिंदगी में ऐसी पड़ गई है, करे, लेकिन मजबूरी ये बन गई कि खामद घर बैठ के, टीवी पे बैठ के 7 न्यूज देखता रहता है और औरत बेचारी काम करती रहती है, तो ज्यादती नहीं है सरासर। अच्छा, नंबर 2 जोन सा है, वो लोग जो नफ्सियाती मरीज हैं, उनका इलाज होना चाहिए। माँ को रियलाइज करना चाहिए कि मेरे बच्चे के साथ कोई मसला है, ये बाइपोलर का शिकार है। ऐसा नहीं लगता कि एक माँ को बचपन से ही बिल्ड करना चाहिए कि तुमने औरत की इज्जत करनी है, तुमने औरत पे हाथ नहीं उठाना, कोई मसला हो भी जाए तो उसको तहम्मुल से सुनना है। आओ मेरा बेटा खाना दो भाई, ये करो वो करो, करते करते उसको सर पे चढ़ा लेते हैं। बाद में वही मर्द जब माँ के ऊपर चिल्लाता है तो फिर कहती है कि बहू की गलती है, बहू ने भड़काया। देखो, ये सब चीजें सीखी होती हैं अपने घरों में। जिस बच्चे ने अपने घर में देखा हाथ उठाना, जिसने अपने घर में शिद्दत देखी है, जिसने अपने घर में अपने वालिदैन की इज्जत होते नहीं देखी, जिसने अपने घर में देखा कॉन्फ्लिक्ट बड़े थे। एक बड़ी मजे की बात बताऊं, जिस तरह बचपन में कुछ चोट लग जाए ना, तो बाद में कहीं चोटें भी निकलती हैं।
बड़ी चोट है। बिल्कुल जब ठीक। बच्चा देखता है ना मेरी माँ को टॉर्चर मिला है, जब बच्चा देखता है मेरी माँ पे हाथ उठाया गया है, जब बच्चा देखता है कि इनकी लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, उसकी शख्सियत दबना शुरू हो जाती है। वो दबी हुई शख्सियत के साथ जब जिंदगी गुजारता है तो जिंदगी के थपेड़े, जिंदगी की हवा इतनी तेज है कि बड़े बड़े इसमें रह जाते हैं। सो बायपोलर या मरीज है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर है, शकी है। मसलन मुझे कई बच्चियां कॉल करती हैं, कहती नहीं हमारी मंगनी हो गई है और कासिम भाई ये बताइए, वो शकी बहुत ज्यादा है, इस हद तक शकी है कि बीमार लगता है। मैं कहा खुदा के लिए शादी ना करो, क्योंकि अगर इस हद तक शकी है उसके साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी? वो तो हर चीज में ऑडिट करेगा। रिलेशन, उनका हुस्न एतमाद होता है। आपको अपने आप पे, अपने कैरेक्टर पे, अपनी पर्सनैलिटी पे इतना यकीन होता है कि आपको होता है यार ये मेरे से बंधा हुआ जा नहीं सकता। लेकिन अगर आप में कोई खला है, आप में कोई कमी है, आपकी नफ्सियात में कोई आर्जा है, तो नतीजे के तौर पे आप शकी हो जाते हैं। शाह जी, शक तो ठीक है, वो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। शक बीमारी है, जो जहनी बीमारी है, ये तो बहुत लोग जो है वो डिस्कशन चली जाएगी। प्रोग्राम का चूंकि इख्तिताम हो रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगे सास के लिए, बहू के लिए और उस मर्द के लिए जो कि इस सारी सिचुएशन से फेस कर रहा है? तीनों के लिए अलग अलग मैसेज क्या होगा आपका? सबसे पहले मशवरा, मैसेज भी नहीं, मशवरा। ये सारी सासें सुन, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी शादी भी फौरन बेटों की तरह अपनी सास से रिक्वेस्ट डरते करनी है कि आप अदब के साथ ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि बड़े हैं, बुजुर्ग हैं जी हमारे। देखिए शादी जितनी ना नहीं पहनती। जिंदगी में सबसे जरूरी जो चीज है ना, वो ये है कि किसी के मकाम को कबूल कीजिए। बिल्कुल। अगर आप सास होती है ना, तो कोई बहू भी होती है। बिल्कुल। अगर आप बड़ी होती है ना, तो वो भी घर की जोनसी है, वो बेटी है, वो भी किसी ने पाली है, वो भी किसी ने ब्याही है, वो भी आपकी नस्लों की अमीन है। खुदारा उसको इज्जत देना शुरू कर दीजिए। बहू के लिए मेरा ये मैसेज है कि बेशक के ये आपकी असली माँ नहीं है, लेकिन ये किसी की माँ है। इसका अदब कीजिए। अगर आप इसका अदब नहीं करेंगी, आप इसको एहतराम, कोई अच्छी दादी का याद और तासुर उनके ज़हनों में नहीं बनाएंगी, बच्चों के ज़हन में नफरत उभारेंगी कि तुम्हारी दादी बड़ी बुरी है, तो याद रखें दादी तो जिंदगी में से उनकी माइनस आपने कर दी, और इतनी बड़ी चोरी आपने की, आप अल्लाह की बारगाह में भी मुजरिम हो गई। खामद के लिए मेरी गुजारिश है, अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करें। जो खामद जिम्मेदारियों को कबूल करता है ना, वो यकीन कीजिए जिसको तवाजुन रखना आता है, जिसको बैलेंस रखना आता है, जिसकी अपनी शख्सियत है, जिसकी मतलब बैलेंस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक शाह जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, यहाँ पर गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ जाता है और मशवरा सबके लिए शाह जी ने दे दिया। मेरा मशवरा सबके लिए यही है, वही तावीज़ पकड़े और